Good morning, students. This is the next session of class 12 biology. Previously, I have discussed about the development of anther and the process of microsporogenesis. Now we are starting our next topic, structure of pollen grain, which is the first cell of male gametophyte in flowering plants. This is the structure of pollen grain. You can see that there are two layers in the pollen grain, and these two layers, out of these two layers, the outermost layer is irregular, variable in different type of pollen grains of different plants. In this, exine is irregular. At one place, exine is not present. This place is known as germ pore. इस place को हम बोलते हैं germ pore. The specific thing is that exine is made up of a specific chemical that is known as sporopollenin. Sporopollenin से present होता है, and where it is not present, जहाँ पर ये sporopollenin present नहीं होता, that part is known as germ pore. And what is the special feature of this sporopollenin? It has the resistance. इसके अंदर resistance है एसिड के लिए, बेस के लिए, टेम्परेचर के लिए और किसी भी तरह के एंजाइम के लिए. इट मीन्स कितना भी हाई टेम्परेचर मिल जाए, कितनी भी हाई एसिडिक, बेसिक या फिर कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन इसको डिग्रेड नहीं कर सकती. एंड दिस इज द रीजन pollen grain can be preserved for a long time, and there are so many fossils we got because of the presence of the sporopollen. इसी की वजह से जो pollen grain है हमें fossils की फॉर्म में प्रोवाइड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रहते हैं, क्योंकि इस पर किसी भी एसिडिक, बेसिक, टेम्परेचर, एंजाइम तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता. नाउ द इनर कंटिन्यूस लेयर ऑफ दिस pollen grain इज नोन एज इंटाइन. इनर लेयर को बोलते हैं हम इंटाइन, जो रेगुलर है, थिक है और साथ साथ में पैक्टोसेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है. पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है. इनसाइड दिस layer a thick dense cytoplasm is present, a prominent nucleus is present. अच्छा खासा बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बहुत सारा, और पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है ये लेयर. If you want to see the pollen grain, we have also first experiment in 12th standard to observe the pollen tube of given pollen grain. हमें ऑब्जर्व करना होता है pollen tube को. तो just you take the mustard flower को लो, उसकी फ्लावरिंग कंडीशन में स्लाइड लेने के बाद मस्टर्ड फ्लावर को जस्ट डस्ट करो, सिंपली डस्ट करो, तो उसका हल्का सा बहुत पतला सा एंथर गिरेगा. उसको कवर स्लिप लगाकर क्रश करोगे या फिर थोड़ा सा सुगर सॉल्यूशन डाल के क्रश करोगे. यू कैन सी दीज टाइप ऑफ एंथर्स आर प्रेजेंट इन द मस्टर्ड. इसी तरह के आपको बहुत सारे pollen grain आसानी से दिखाई दे जाएंगे. बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसानी से आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो. इफ़ यू हैव माइक्रोस्कोप एट योर होम during this time or after opening of school, you can see the pollen grains very easily. So this is the structure of pollen grain. Now we will study about the process of microgametogenesis. अभी तक तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई थी, माइक्रोस्पोर बने थे. अभी क्या बनेंगे? मेल गैमीट्स बनेंगे. तो हम पढ़ेंगे प्रोसेस माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ male gametes by the microspore, by the pollen grain. It is known as microgametogenesis. Now what happens? This is a pollen grain which has a nucleus, which has a cytoplasm. It divides by the process of mitosis and form two unequal cells. Upper cell is known as vegetative cell and lower one is known as generative cell. Okay. Now this upper cell is large, has much more amount of cytoplasm in it. Nucleus is also large, but the another cell is present in the cytoplasm of vegetative cell. Its nucleus is small and it floats in the cytoplasm. It's in a vegetative cell. Okay. Now the process divides into two parts. यहाँ से So now the process divides into two parts. Process यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. In maximum angiosperms और in minimum angiosperm. It means ज़्यादातर angiosperms में क्या होता है, 60% हम ये ले लेते हैं, 40% अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी.
In maximum angiosperms, this pollen grain shed on stigma, ये जो pollen grain है स्टिग्मा पर गिरता है in the two celled condition, टू सेल कंडीशन में ही आकर ये स्टिग्मा पर गिर जाता है. एंड व्हेन इट शेड ऑन द स्टिग्मा, और जब ये स्टिग्मा पर गिरता है, देन इट स्टार्ट टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब एंड इट्स जेनरेटिव सेल, इसकी जो जेनरेटिव सेल है, इट स्टार्ट टू डिवाइड एंड कन्वर्टेड इनटू टू मेल गैमीट्स. तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है बेटा कि टू सेल्ड कंडीशन में, इसी कंडीशन में जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ गिरता है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है. स्टिग्मा इसको अट्रैक्ट करता है, केमोट्रोपिज्म पढ़ा होगा सबने, बाय विच अ पोलन ट्यूब, एक पोलन ट्यूब फॉर्म होती है. एंड आफ्टर द जनरेशन ऑफ दिस पोलन ट्यूब, दिस जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल नरिशमेंट में यूज कर ली जाती है, दिस जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स. ओके, नाउ द सेकेंड केस. अब हम बात करते हैं सेकेंड केस के बारे में. In remaining angiosperms, in 40% angiosperm before pollination, pollination होने से पहले ही, pollination होने से पहले ही क्या होता है बेटा कि this pollen, this generative cell divides into two male gametes. ये जो generative cell है वो पोलिनेशन से पहले ही दो मेल गैमेट्स बना देती है. एंड नाउ इन थ्री सेल्ड कंडीशन, अब ये थ्री सेल्ड कंडीशन में आने के बाद तब स्टिग्मा के ऊपर जाकर शेड होती है, तब जाके ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगी और फिर पॉलिनेशन होगा. इट मीन्स फिर उसके बाद में पोलन ट्यूब बनेगी. तो आई एम रिपीटिंग, the pollen grain divides into two cells, vegetative cell, generative cell. Now in this stage the case divided into two parts. In maximum angiosperm, the pollen grain shed on the stigma in two celled condition, and after the pollination the pollen grain burst from pollen tube and the generative cell divides into two male gametes. But in remaining angiosperms, in 40% angiosperms before pollination, this generative cell divides into two male gametes, and when this pollen grain become in three celled condition, then in three celled condition pollination occur in these angiosperm. So now two male gametes are produced, दो male gametes का formation हो गया. It means the process of formation of male gametes from the pollen grain, it is known as microgametogenesis. अब मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ जिससे एक नंबर दो नंबर में और कभी कभी 5 मार्क्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पता करने के लिए. अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमारी, एंथर. ठीक, कैसा एंथर था बेटा, बाइलोब्ड. तो बाइलोब्ड एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया थी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या थे, बहुत सारे, मैनी एमएमसी, बहुत सारी एमएमसी थी. नाउ ईच एमएमसी, हर एक एमएमसी क्या बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर्स. हर एक एमएमसी क्या बनाएगी, 4 माइक्रोस्पोर. नाउ ईच माइक्रोस्पोर, हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो कितने मेल गैमेट्स बनाएगा, 2 मेल गैमेट्स. इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 400 मेल गैमेट्स आर देयर इन एंजियोस्पर्म, देन हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मेशन. और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड द माइक्रोस्पोर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 400 मेल गैमेट्स. तो इसमें एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ आपके सामने कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इतने मेल गैमेट्स हैं, 400 हैं, जितने भी मेल गैमेट्स, और आपसे माइक्रोस्पोरेंजिया पूछे कि कितनी है, तो हमेशा ध्यान रखना माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होंगी, 4. क्योंकि बाइलोब्ड एंथर ऐसे ज्यादा माइक्रोस्पोरेंजिया तो नहीं हो सकती. आंसर हमेशा 4 आता है. कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं. नो, देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है. माइक्रोस्पोरेंजिया हमेशा कितने रहने वाली है, 4. बाकी और जो क्वेश्चन है कि कितने माइक्रोस्पोर होंगे या कितने एमएमसी होंगे, वो मैं लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट करूंगी तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगी. ठीक, now we will start some advantages and disadvantages of pollen grain. Now first we take what are the disadvantages. क्या disadvantages हैं भाई, इसके पहले ये देखते हैं हम. ठीक, as we know that pollen grains are formed in a very large amount.
बहुत बड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी ये बात कि मोस्ट ऑफ द टाइम द मेल गैमेट्स, द मेल पोलन ग्रेन्स, दीज आर फॉर्म्ड इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट में बनते हैं क्योंकि कैरियर के थ्रू उन्हें जाना होता है अपने टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट पार्ट तक, तो ताकि ये अपने प्रीडेटर से बच सकें या फिर इनका लॉस्ट जो हो रहा है एयर में या वाटर में वो कम हो सके, इसके लिए पोलन ग्रेन बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये पोलन ग्रेन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं तब हमें ये एस्थमा कर सकते हैं, हमें ब्रोंकाइटिस हो सकती है, हमारी जो ब्रोंक्यूल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक। उसके बाद हमें पोलन एलर्जी भी हो सकती है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे अंदर क्रिएट हो सकते हैं। ज़्यादातर जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, जैसे पार्थेनियम है जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, उसके बहुत लार्ज अमाउंट में स्पोर्ट्स गैमेट्स का जब पोलन ग्रेन्स का पोलिनेशन होता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है और एयर में मिक्स होकर अगर हमारे सिस्टम में एंटर कर जाएं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्रिएट हो सकती हैं, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो भाई एडवांटेजेस की अगर बात करें तो दीज आर रिच इन प्रोटीन। सबसे पहली बात, ये बहुत रिच होते हैं, प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट फैट भी माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, बट दीज आर रिच इन प्रोटीन। बिकॉज ऑफ दीज आर रिच इन प्रोटीन द पोलन टैबलेट्स एंड सीरप्स आर फॉर्म्ड। सीरप्स और टैबलेट्स बनाए जाते हैं पोलन ग्रेन के, जिनको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। और ज़्यादातर एथलीट्स जो होते हैं और हॉर्स राइडर्स जो होते हैं वो इनको अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। बिकॉज एज वी नो दैट प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाएगा तो इट बिल्ड्स आवर बॉडी, दैट्स व्हाई द प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इट इंक्रीजेज आवर पावर, इट ग्रोज आवर बॉडी, दैट्स व्हाई आवर परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज। सो दिस इज क्लेम्ड by most of the person that these are utilized by the athletes and the horse riders to enhance their performance in their respective sports. Okay, so these are the disadvantages. अब इसके बाद हम एक छोटे से टॉपिक पर और आते हैं बेटा। वो एक छोटा सा टॉपिक है हमारा विएबिलिटी, पोलन विएबिलिटी, ठीक है। विएबिलिटी का मतलब है कितने टाइम तक जिंदा रहना किसी सेल का, कि कितने टाइम तक वो जिंदा रहती है। आफ्टर पोलिनेशन द पोलन ग्रेन शेड ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर चला जाता है। अब जब तक उसका टाइम ड्यूरेशन है जिंदा रहने का, जो पीरियड है कि जब तक वो जिंदा रह सकता है, तो उसी ड्यूरेशन में उसको फर्टिलाइजेशन करना होता है ओव्यूल में प्रेजेंट एग के साथ, अदरवाइज वो मर जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब ये विएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, बहुत अलग अलग होती है ये विएबिलिटी भी। कुछ में कुछ मिनट्स की होती है, कुछ में मंथ्स तक की होती है ये अवेलेबिलिटी। तो अब यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं पोएसी फैमिली का, ठीक है, पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली का। इसमें सारे सीरियल्स आते हैं, जैसे वीट है, राइस है, ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो इनका पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर जाकर गिरता है तो केवल 30 मिनट्स के लिए जिंदा रहता है, और 30 मिनट्स के बाद अगर 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर वो डाई हो जाएगा। इसके अलावा और फैमिली लें हम, जैसे सोलेनेसी है ना, रोजेसी है, या फिर आपका लेग्यूमिनेसी है। ये सारी फैमिली ऐसी है बेटा कि जिनमें पोलन ग्रेन्स महीनों तक, मंथ्स तक जिंदा रहते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है अप टू दिस ड्यूरेशन। तो अकॉर्डिंग टू देयर वेबिलिटी देयर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अफेक्ट, इनकी वेबिलिटी के अकॉर्डिंग की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी अफेक्ट होती है। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक यहाँ पर हमारा आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। हम सब जानते हैं अभी, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो मीन्स सारा कुछ लेबोरेटरी में कंडक्ट हो जाता है। आपने शायद सुना हो आईवीएफ बेबीज होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, तो एवरीथिंग इज स्टोर्ड प्रिजर्व्ड इन द लेबोरेटरी एंड इट कैन बी यूज्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम बाय गिविंग द नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन में उसको नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप किया जाता है और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं जब तक उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे एक टर्म मैं आपको बता रही हूँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो रिक्वायर्ड मेल है उसके सीमेन को प्रिजर्व किया जाता है और कोई भी डिजायर्ड जो फीमेल है उसकी बॉडी में डाल देते हैं, जिसमें नॉर्मल इंसेमिनेशन नहीं हो सकता, ताकि वो फीमेल जो है वो कंसीव कर सके। इसी तरह की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है कि जो प्लांट्स वल्नरेबल हैं या फिर थ्रेटेंड हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनकी पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर।
और जब भी इनका यूटिलाइजेशन हमें करना हो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, तो यहाँ पर हम इन पोलन ग्रेन्स को लेकर किसी भी डिजायर्ड जिस पर ये पोलिनेशन हो सके इसका, उसके स्टिग्मा पर डाल देते हैं और फर्टिलाइजेशन करा लेते हैं। और इस तरीके से जब पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है देन दिस इज कॉल्ड पोलन बैंक्स। पोलन बैंक्स बोलते हैं उन जगह को। और इसी तरीके से प्लांट के जो सीड होते हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाता है फेवरेबल कंडीशंस देके, और जब भी इनको जहां यूज करना हो तब वहां से लेकर इनको यूज कर लिया जाता है। अभी मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग भी बताऊंगी फर्दर यूनिट्स में, यहाँ भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी। तो यहाँ पर हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज स्टेमेन। we have completed structure of stamen, structure of anther, development of anther, microsporogenesis, microgametogenesis, cryopreservation, structure of pollen, everything we have completed. So if you have any problem then you can write your problem, you can write your question in my description box, and for my students they can message me on my WhatsApp, so I am definitely solve your problem. So now next time we will discuss the female reproductive part, it means the gynoecium. Till then, goodbye, have a very beautiful day.